fitness is not just limited to looking slim or just losing weight, which has been too much commercialized. What exactly is the definition of yoga? Mental and physical health goes hand in hand. मेजर करोगे कि एक कटोरी राइस, एक कटोरी चावल है, कितने पता लगा घर पे बर्तन से ज्यादा तो फिर मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स रहेंगे. For me, yoga is more about mind and body coordination. तो हाउ डू यू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ? या आपका वर्कआउट उनके साथ ही हो रहे हैं? अगर मैंने बाहर का खाया है आज या मेरे को शाम में बाहर का खाना है तो मैं दिन में लाइट खा लूँ, तो वो आपको अपनी बॉडी को समझना होगा ना. Maybe your hormones are not good, आपका digestion अच्छा नहीं है, तो what is the point of looking good from outside? ऐसा नहीं कि आप किसी को एक्सरसाइज करा रहे हो तो आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो. Hello everyone and welcome to Tajinder Kalsi Show. In a world that's constantly rushing between meetings, deadlines, emails and that forever growing to-do list, one thing that we forget to prioritize is ourselves, our well-being and our balance. Today we have someone who will help us achieve that balance back in our life and transform us from the inside and out. We'll be exploring a field that is fitness and yoga. So today we have our guests with us, Ina Gupta and Khushbu Maheshwari. Ina is the founder of EY Lifestyle, which is into holistic health and fitness. Hi Ina ji. Hi Khushbu. Hi. Welcome to the show. Thank you. Hello. So Ina, how would you describe your fitness programs? I mean, what exactly you are into? Because yoga and fitness is a generic term. तो आप exactly क्या करते हो? So the vision towards ER Lifestyle is to make people fit and healthy without any medications, and internally you should start feeling better. It is not about losing weight, it is about how you feel inside, how your hormones are behaving, how your digestion is working, how energetic you are, how willing you are to work, and positive attitude, how's your sleep, and glowing skin. Okay. So I want to make people understand that fitness is not just limited to looking slim or just losing weight, which has been too much commercialized. I want to make people aware that mental and physical health goes hand in hand. आप एस्थेटिकली बहुत अच्छे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बट इंटरनली अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर फीलिंग योर बॉडी इज हैविंग पेन्स, हेडेक रह रहा है, मे बी योर हॉर्मोन्स आर नॉट गुड, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लुकिंग गुड फ्रॉम आउटसाइड? So basically, you're saying fitness is not just about doing those headstands. एग्जैक्टली. Okay. So what exactly is the definition of yoga? And how would you define it? For me, yoga is more about mind and body coordination. Okay. So फिटनेस तो आप मतलब इफ आई टॉक अबाउट वेट लॉस या फिटनेस, देर आर सो मेनी वेज. आप जिम्स जा सकते हो, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, कोई वॉक कर रहा है, वट एवर यू लाइक, डांस एंड वट एवर. बट हाउ अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड and body and harmonizing those mind and movements, Okay. so that your body and mind are in sync with each other and you are able to have that control. Most of the people who are into this fitness, maximum लोगों ने starting यहीं से नहीं की है, तो कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट होता है या कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो योगा या फिटनेस की तरफ मूव होते हैं. तो व्हाट्स योर स्टोरी? For me, I was born into a family of yoga and naturopaths. My grandfather was into yoga and naturopathy. Then my mom also entered into this field. So since my childhood, I have been doing yoga. Okay. And I have been seeing my mom, how she's treating the patients, what is she consulting them. I always was around her. Okay. So maybe that was the passion inside. And when I delivered my baby, I was not able to understand how a woman body changes when post delivery and post marriage. Okay. Because
one thing, after marriage, adjusting to a new family, it takes a toll on your mental health, right? Maybe I not be able to relate to it, but I can still feel it. And then जब आपकी डॉटर के साथ वो चीज होगी तब Maybe. मोस्टली No, I can relate it through my wife's journey, but still, yes, daughter का journey अलग रहेगा. but what I have seen is mostly men understand this thing better when they fall into the same situation, and that happens when raising a girl child, and then And I have a girl Girl child, so I can child. relate to it. Okay. and luckily I also have a girl child. So खुशबू जी, आप what's your journey? वैसे बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इज नॉट अबाउट लाइक फिटनेस में. जनरली आई वॉज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और आई वॉज एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ अगेन आफ्टर डिलीवरी. अगेन आई वॉज इन टू देन मुझे भी कुछ करना है, तो अपना जॉब तो नहीं करना था क्योंकि आई डोंट वांट टू डू लाइक वही 9 to 5 जॉब. तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सारे मैंने बिजनेसेस किए. पर फ्रेंकली मैंने ये वाला परसेप्टिव तो देखा ही नहीं कि मैं इसमें भी जा सकती हूँ. तो जस्ट ईना पुल्ड मी अप एज आई वॉज अ क्लाइंट ऑफ ईना. Okay. ठीक है. तो फिर बस मैं एक्सरसाइज सिंपल जाती थी, करके आ जाती थी. समडे लाइक इसने बोला कि क्या आप मेरे को ज्वाइन करोगी, आई वॉन्ट टू लाइक एक्सप्लोर या एक्सपैंड माई बिजनेस. तो फर्स्ट टाइम तो आई थॉट कि नहीं ये मेरे से कहाँ होगा. तो बेसिकली मैं बोलूँगी ना, उसने मेरे में कॉन्फिडेंस लाया या मतलब मेरे में वो दिखाया वो कि नहीं. परफेक्ट स्टूडेंट होते हैं ना एक, हाँ कि उनको परफेक्ट. फटाफट हाँ पकड़ लो. मतलब आपको जो Exactly. like और होता पकड़े इससे है better ना है. यू आर हनुमान लाइक कि आपको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं पता हो. और कोई आपको बार बार बोल रहा है कि नहीं यू कैन डू, मैं बोल रही हूँ नहीं आई कांट डू. तो उन्होंने कहा एक बार आप स्टार्ट करो देन आई मतलब मैं आपके साथ हूँ. एंड शी बिलीव्स इन मी एंड बिकॉज ऑफ हर आई एम लाइक जो भी मैं हूँ बिकॉज ऑफ हर हूँ. क्योंकि मैंने कभी ये जर्नी या सोचा ही नहीं कि मैं इस करियर में या इसमें भी लाइक कभी फिट हो सकती हूँ. फिर उसके बाद देन आई एक्सप्लोर माई ओन बॉडी. उसमें मैंने अपने इतनी चेंजेस लाए, मतलब इतनी चेंजेस हुए. देन आई वॉज लाइक कि अगर मेरी बॉडी इतना चेंज हो सकती है, मेरे को भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी वो एकदम ठीक हो गई. तो आई थिंक कि हाँ कि चलो आई कैन स्टार्ट. और वो कहते हैं ना खुद का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होता है आगे रिलेट करने के लिए. Okay, I forgot to ask, like, what's your background? Since you mentioned like you started into this after delivery. हाँ. तो उससे पहले आप क्या करते थे? So my complete qualification education from starting is into finance. Okay. I was in fact my mom used to say ईना ये बहुत मुश्किल काम है, so don't get into this. And वो एक typical small town thought होता है. I belong to Karnal, so एक वो typical thought था कि नहीं बस पढ़ाई पूरी कर लो. And I was the topper of my class, so नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. Then I got into a good college. Then again the journey continued. Though I wanted to do something different, but वो family pressure और being a star student आपके ऊपर एक वो होता है stamp कि नहीं बस पढ़ते रहो. So I continued with that, but after having a work ex of 10 years into finance, Okay. the last exit was from Delhi Metro into financial services. I was Okay. there with Delhi Metro. So leaving a government job was very difficult. Again, family pressure. गर्ल्स के लिए Agreed. गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, नहीं छोड़नी. बेस्ट होती है वो तो. और शादी के बाद छोड़ा आपने शायद. हाँ, after my daughter I left it. तो how did your in-laws react to it? When family तो हाँ, nobody was ready. My husband was not ready. My father-in-law was not ready. Even my mother was not ready. I told her the challenges like leaving a small child behind and so many things. Of course, as a mother, there were so many apprehensions leaving your child and a first-time mother. But somehow I was all alone who took that step because I had good amount of savings which I did in my like a फाइनेंस से career. थे ना आप तो. फाइनेंशियल एजुकेशन काम आ गई वहाँ पे. हाँ, maybe. Correct. So I thought कि ठीक है मेरे पास एक corpus है which like for next 2 years to 5 years I can manage myself and I wanted to explore. Though after delivering the baby I was like यार ये सही career मैं choose कर रही हूँ या नहीं, because अपनी body support ही नहीं करती है. You are constantly exploring कि अच्छा ये हो क्या रहा है. Whenever you are at the front end आपको समझ में आ रहा है कि यार ये तो मुझसे ही नहीं हो रहा. But that actually helped me
to go deep into, you know, कि deep into understanding कि मुझे करना कैसे है और deliver कैसे करना है. Because Okay. आज मैं आपको बोल देती हूँ, जैसे for a layman yoga is like चलो धनुरासन कर लेते हैं. हाँ हम लोग Right. तो फिर But बथेरे आसन से ही आएंगे उसमें तो बस. बट आपको कैसे पता धनुरासन में कौन कौन सी मसल्स यूज हो रही हैं, और उस मसल्स को मुझे, एक पर्सन जिसको सर्वाइकल है वो धनुरासन कर ही नहीं सकता. ओके. तो आई ट्राइड टू फाइंड आउट द वेज कि उस धनुरासन पे पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से मसल्स को टारगेट करना है एक लेमैन को सिखाने के लिए, और उसके बाद उसको उस पोजीशन तक कैसे पहुंचाना है. Okay. So that is what I explored, and that is, I would say, a USP of ER lifestyle, which we have curated. Okay. So coming to EY lifestyle, कितने मतलब किस तरह के प्रोग्राम्स हैं आपके, वर्कआउट प्लान्स वगैरह कैसे हैं, if you can. हमारी workout plans are mostly targeted towards women, Okay. women fitness, because मुझे लगता है for the men there are lot of opportunities. वो कहीं भी चले जाते हैं, कैसे भी करके टाइम निकाल लेते हैं. But for females, you know, getting comfortable in their own body is a challenge, and especially post delivery and post marriage, क्योंकि आप इतनी सारी social responsibilities में, then घर में बच्चे के साथ, जॉब में, इतनी सारी चीज़ों में struggle कर रहे होते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि अच्छा अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है. एंड कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों में हम भूल ही जाते हैं कि एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, हम जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम 100% डिलीवर नहीं कर सकते. Correct. लाइक अगर मैं बच्चे को भी सोचूं कि मुझे बेस्ट टाइम देना है, तो अगर मेरे अंदर इरिटेशन रहेगी, हाउ कैन आई गिव दैट. That will reflect on the child for हाँ, sure. तो वो क्या होता है, हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली शाउट करने लग जाते हैं, फिर हमें रिग्रेट भी होता है, देन यू गेट ट्रैप्ड. और वैसे हम बोलते रहते हैं यार टाइम नहीं है. मैं बोलती हूँ यार आप थोड़ा सा टाइम निकालो. आई जस्ट नीड 2 hours to 3 hours in a week. That's all. बट जनरल परसेप्शन तो यही होता है कि वर्कआउट मतलब डेली, हफ्ते के 6 दिन तो मिनिमम जाते हैं लोग. देखो, जिम में तो ये चलता है. अगर आप कर सकते हो वो बहुत अच्छा है. आप डेली खाना खाते हो तो एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए. Okay. ठीक है. बट जो आज का रूटीन है उसमें लोग क्या करते हैं कि यार 6 दिन तो हो नहीं पा रहा, इसको छोड़ ही दो. फिर जब याद आया तो अब 6 दिन कर लो. ये स्टार्टिंग में लाइक 6 दिन लगातार करते रहेंगे, 1 महीना कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कहेंगे अब नहीं हो रहा हमसे. तो सस्टेनेबिलिटी मैंने ऐसा बहुत बार किया है. सस्टेनेबिलिटी नहीं स्टार्ट रहती किया है. है, फिर महीना किया है, फिर छोड़ दिया इससे है. अच्छे 2 दिन हफ्ते में करो, हाँ. 3 दिन करो, देन यू कैन सस्टेन. बट उसको आप 1 साल तक कंटिन्यू रखो, तब Okay. आपको रिजल्ट आएंगे. अब हमारे पास लोग आते हैं, खुशबू के ऑल्सो नो, वो कहते हैं मेरे भाई की शादी है, मुझे 2 महीने में पतला कर दो. आई डोंट नो, ये चीज इतनी एनग्रेव हो गई है माइंडसेट में, मे बी बिकॉज ऑफ द कमर्शियलाइजेशन. जो टीवी पे फ्लैशी एड्स आते हैं उसमें आपको बोलते हैं 2 महीने में 10 किलो कम. बट नोबडी टेक्निकली ये पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बोलूं, बिना 12th क्लास किए आप बस एग्जाम में 1 महीना जाओ और मुझे 90% लेके दिखाओ. यहाँ तो पूरे साल पढ़ के नहीं एक आता. केस में पॉसिबल है कि जब आप खाना ही बिल्कुल छोड़ दो तो But then that will have a negative impact also. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट सस्टेनेबल. उसमें आपका मसल मास लॉस होगा, वाटर वेट जाएगा, पर जो एग्जैक्ट जो मेन फैट है आपका बॉडी का वो नहीं जाएगा. एग्जैक्ट फैट वो तभी जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, बैलेंस डाइट लेते हो, तब आप रियल फैट जा पाते हो. क्योंकि लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता कि बॉडी वेट और जो फैट होता है वो मतलब लोग स्केल में ही नापते हैं कि यार मैं 2 महीने से वर्कआउट कर रही हूँ और मेरा लेकिन वेट कम नहीं हो रहा, पर लेकिन वो टोन्ड हो रहे हैं. पर एग्जैक्ट वेट रिड्यूस तभी होता है कि आपका मशीन में नहीं दिख रहा है. इट्स ओके. अगर आपका मशीन में ही 5 किलो 1 महीने में खत्म हो गया, इसका मतलब यू आर लूजिंग योर मसल मास, नॉट योर रियल बॉडी फैट. अगर आप सस्टेनेबिलिटी के साथ धीरे धीरे रिड्यूस करते हो, देन इट इज लाइक आपका रियल फैट जो बॉडी में वो जा रहा है. तो वही डिफरेंस लोगों को नहीं पता. वो हमेशा ही स्केल से लाइक करते हैं कि नहीं मेरा तो वेट ही नहीं कम हो रहा, तो लाइक. ओके, सो दैट ब्रिंग्स टू अनदर क्वेश्चन. अब जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मुझे इस फील्ड में घुसना है तो ये स्टडी कहाँ से करनी पड़ेगी? आई मीन ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया ना. तो आप आओ हमारे पास, हम आपको डिटेल में समझाएंगे, करवाएंगे, फील करवाएंगे, बॉडी फील करेंगे. हाँ, फिर आपको समझ में आएगा. बिकॉज सी मैं भी नहीं ये कह सकती कि ये मुझे 1 दिन में आया. एंड फॉर हर ऑल्सो शी टुक 5 years to understand it very deeply. Now she can deliver 100%. But I am also learning.
I am also point is learning. कि like कोई specific courses भी होते हैं इसके? I mean, Courses- obviously coming to you will be the best option, but just in case someone is not able to do that. नहीं, कोर्सेज होते हैं, देर आर एम्पल ऑफ कोर्सेज, आपको पिलाटेस के भी मिल जाएंगे, योगा के भी मिल जाएंगे, बट वी हैव क्यूरेटेड आवर ओन फॉर्मेट्स आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड रिसर्च Okay. with my own body and with the people who have actually helped me to grow and who have trusted me so much. And I honestly have we have good retention ratio, like जो हमें join करता है वो easily जाता नहीं है, crossing Okay. my fingers. Cool. I mean that's always good. So since we started तब से लोग हमारे साथ continue कर रहे हैं, reason being because हम वो डेप्थ पे काम करते हैं. इट इज़ नॉट लाइक जैसे अगर मैं कोर्स कर रही हूँ, कोर्स में आपको एक चीज़ सिखा दी, आप समझोगे, आपने अगर कंप्यूटर साइंस किया है तो जो आपने स्कूल में पढ़ा या जो आपने कॉलेज में पढ़ा, डू यू थिंक रियलिटीज आर द सेम? No, नहीं. totally different. टोटली डिफरेंट. सो हम यहाँ पे रियलिटीज पे काम कर रहे हैं. मैंने भी कोर्सेज किए. वंस आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग, आई ऑल्सो ज्वाइन मल्टीपल कोर्सेज एंड स्टिल आई एम लर्निंग. आई वोंट से कि अभी भी मुझे कुछ आता है. आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग सो मेनी वो थिंग्स तो lifelong वी learning बोथ process इन होता है. फैक्ट. या पर लेकिन हम बंदे की बॉडी में जाके घुस के देखना चाहते हैं, मतलब देखते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको रिजॉल्व करें. बेसिकली हम ये नहीं करते कि चलो आओ आज भुजंग कराती हूँ या आज मैं वो आपको कोबरा एंड ऑल लंज कराती हूँ, स्क्वाट कराती हूँ. लंज स्क्वाट तो हमारे बाद में आते हैं. पहले हम पर्सन की मोबिलिटी और सारी पहले हम बॉडी चेक करते हैं कि वो इतना उसको एबल मतलब करने के लिए एबल है भी या नहीं. अगर मैं आके पहले दिन ही बोल दूँ स्क्वाट कर लो, पर आपके लेग्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके जॉइंट्स इतने मतलब हेल्दी ही है. नहीं है, वीक है, तो स्टार्टिंग में भी जस्ट एक्सप्लोर. Okay. So आपके वर्कआउट प्लान्स कैसे होते हैं? लाइक सिंगल तो वर्कआउट हम- प्लान चलता है, मिक्स है, क्या वेरिएशंस है? सो बेसिकली एज आई मेंशन वी हैव क्यूरेटेड आवर ओन फॉर्मेट्स, जिसमें योगा भी है, पिलाटेस भी है, टोनिंग भी है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, मोबिलिटी, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज, HIIT एंड बैलेंसिंग, एनिमल वर्कआउट, स्ट्रॉन्ग नेशन. इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल. Okay. so that a layman can understand कि हम करवा क्या रहे हैं. मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि आ जाओ चलो जुम्बा करवाती हूँ. पूरी दुनिया जुम्बा करवा रही है, राइट? बट वो इंटेंट टू मेक दैट पर्सन अवेयर कि ये करना कैसे है और क्यों करना है और इसको इंजॉय करके करना है. ऐसा नहीं आओ मैंने करवा दिया आप करके चले गए. दैट वोंट बी अ वो तो लिटिल. डांस सीक्वेंस लग जाता है फिर तो. हाँ, तो वो दैट्स लाइक अ मोनोटोनस जर्नी. करेक्ट. हम उसको ऐसा बनाते हैं, हम आपका माइंड और बॉडी का इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर देते हैं इन सारे फॉर्मेट्स को मिक्स करके कि आपको समझ आने लग जाता है. यू स्टार्ट लविंग योर बॉडी. तभी एज आई मेंशन कि जो लोग ज्वाइन करते हैं वो इजीली नहीं छोड़ते हैं अगर वो फिटनेस को समझ पा रहे हैं तो, बिकॉज दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा यार उस. एंड इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ. जो फॉर्मेट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ फिजिकली काम नहीं करते हैं. दिस वर्क्स मेंटली ऑल्सो. खुशबू कैन एक्सप्लेन इट much more because now she has actually felt it. Okay. Yeah. I mean, how exactly if you can? बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो तो यू कैन रिलेट कि मतलब ये कैसे कनेक्ट हो रहा है. जैसे अब हमारे पास जनरली लोग आते हैं, उनको यही नहीं पता होता, सिंपल आए कि मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, है ना. उन्हें यही नहीं पता कि उनके किस पार्ट में दर्द है, या मतलब वो कनेक्शन ही नहीं है उनका. उनको यही नहीं पता कि मेरे यहाँ फिंगर्स में पेन है तो हम फिंगर्स मूवमेंट कराते हैं, ये कराते हैं. तो हम बेसिकली अपने माइंड को उस पर्टिकुलर पार्ट से कनेक्ट करते हैं कि अच्छा इसमें भी कुछ होता है. मतलब वो मूव ही नहीं कर पाते. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि टो फिंगर्स एक्सप्रेड करो तो बहुत सारे पीपल होते हैं कि वो मतलब टो फिंगर्स तो वो उसको ओपन ही नहीं कर पाते क्योंकि वो उनका बॉडी एंड माइंड कनेक्शन है ही नहीं है. Okay. तो हम वो मूवमेंट से उनको कोऑर्डिनेट करके उनको लाइक हम लोग मतलब खुद के help शरीर को करते हैं. पहचानने की Yes. कोशिश. और उससे फिजिकली तो आप ठीक हो ही रहे हो बिकॉज हम आपके ब्लड सर्कुलेशन पे काम कर रहे हैं, हम आपके ऑक्सीजन फ्लो पे काम कर रहे हैं, हम आपके नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे हैं. सो जब ब्रेन काम करता है, जो कनेक्शन हम छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द फास्ट लाइफ, बिकॉज ऑफ एज यू स्टार्टेड ईमेल्स, टू डू लिस्ट, ऑफिस कॉल्स, घर, बच्चे, सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहता है. तो हमारा वो दिमाग, एक दिमाग है वो 4 जगह 5 जगह काम कर रहा होता है एक टाइम पे. Correct. तो बॉडी के साथ उसका कनेक्शन ही नहीं है. अब आज आप देखो किसी को नहीं पता भूख कैसे लगती है बिकॉज हमारे पास इतना एम्पल खाना है ना. अरे आज
इतनी देर में जोमेटो आ जाएगा, इतनी देर में स्विगी आ जाएगा, इतनी देर में घर पे ये बन जाएगा. एवरीथिंग इज सो रेडिली अवेलेबल. पहले तो ये चीजें इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होती थी, हमें टाइम लगता था. वी यूज टू वर्क हार्ड टू अर्न दैट फूड. हाँ तो खुद ही उगाओ, खुद ही तैयार करो सब कुछ. और लिमिटेड क्वांटिटी होती थी ना. घर में भी अगर खाना आ रहा है, इतनी बड़ी फैमिली है, सबको लिमिटेड मिलता था, तो भूख का मतलब पता था. आज तो हमें भूख का मतलब ही नहीं पता है. माइंड का और एब्डोमेन का कनेक्शन ही नहीं है कि अच्छा भूख लगती कैसे. हम तो वेट ही नहीं करते भूख आधे से लगने ज्यादा की. लोग स्ट्रेस के चक्कर तो में ही अगर खाते हैं. हाँ मतलब आई वाज कमिंग टू दैट ओनली लाइक कि खाली stress बैठे हैं, होता है कुछ नहीं तो समझ खा में आ रहा है, रहे चलो कुछ खा लेते हैं. वो हर 2 घंटे आधे घंटे में लगता है कुछ तो चाहिए खाने को. तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है पानी पियो. ओके. और उसके बाद जब आप मूवमेंट करते हो, और जो ये हम माइंड और मसल कनेक्शन आपको बता रहे हैं, या माइंड और बॉडी कनेक्शन, आपको जब पता चलेगा, जब आपका वो कनेक्शन बिल्ड होगा, तो आपका माइंड भी शांत होगा. जो आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही है, या मतलब कॉन्शियस स्लीप है. डीप स्लीप का मतलब ही नहीं पता. डीप स्लीप कैसे होती है? किसी को सपने आ रहे हैं, किसी को रात को नींद खुलती बहुत ज्यादा है, तो वो डीप स्लीप तो है ही नहीं. राइट. जब आपका माइंड और बॉडी कनेक्शन होगा, तो अपने आप डीप स्लीप भी होगी, आपकी माइंड रिलैक्स भी होगा, खाने की अनड्यू क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड नहीं हो ना, आप रिलैक्स्ड हो. और जब आप न्यूट्रिशन बॉडी को दोगे, जब आपका कनेक्शन होगा, आपको समझ में आएगा अच्छा मेरी बॉडी ये मांग रही है और इस टाइम पे मुझे ये देना है. पीपल हैव फॉरगॉटन दैट. एंड मे बी आई वोंट से पीपल, कमर्शियलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है ना. People are not aware of it actually. अवेयरनेस बहुत ज्यादा है. वी आर एजुकेटेड इलिटरेट्स. हाँ, so aware about this fact basically. We नहीं. are aware about multiple other things नहीं. which have been commercialized. एक्चुअली कोई मेहनत नहीं करना चाहता, मैं सही बताऊं आपको. हाँ. Okay. एक्सरसाइज सबको पता है कि बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिशियल है, पर नहीं, वो नोबडी जब तक पता वांट्स चलता टू तब तक थोड़ा गेट लेट हो चुका पेन होता ना. है शायद. अगर आपको एक्सरसाइज करने में पेन हो रहा है तो नोबडी वांट, वो सबको क्विक रिजल्ट चाहिए कि दवाई चलो खाओ, कुछ खा दर्द लो, चला जाए. दर्द चला जाएगा. पर नोबडी वांट्स टू डू लाइक पेन बॉडी में. पर हम लोग बोलते हैं कि अभी पेन ले लो, बाद में लेने की क्या जरूरत है. So that brings to another question. I mean, there are people who are those couch potatoes. काउच. Okay. तो वो जो couch potatoes हैं, उनका क्या solution है? उठो और मूव करो. But आप वो तो एक उठना ही बार नहीं चाह में रहे ना वो समझ तो. वो करके देखोगे तो ही तो उस चीज का Of फील course. होगा. अब आप एक बात बताओ, स्कूल में आप स्कूल से एसोसिएटेड थे, अब एक बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, हम उसको कहीं 90% ला के दिखाओ, कैसे पॉसिबल है? अब उठ के पढ़ना तो पड़ेगा ही. या मैं बोलूँ आप पेंटर बन जाओ, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बन जाओ, मतलब बस मैं यहाँ पे बैठी रहूँ और मैं फॉर दैट मैटर बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊँ, या फॉर अपनी जॉब में काम तो मुझे करना ही पड़ेगा. सेम विद द बॉडी, हिलना तो पड़ेगा ही. कोई मालिश, कोई मेडिसिन, कोई थेरेपी जादू नहीं कर सकती. खुद से ही अपनी बॉडी के को लिए तो लाना एफर्ट पड़ेगा. लेना ही पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट. और जो आपको शॉर्टकट दे रहे हैं, दे आर फूलिंग यू अराउंड. एंड दैट इज व्हाई आई कॉल्ड एजुकेटेड इलिटरेट्स. पता हमें सब कुछ है, मैं ये कभी नहीं मान सकती कि हमें पता नहीं. सबको पता है अच्छा खाना खाना चाहिए, सबको पता है फ्रूट्स खाने चाहिए, सबको पता है कि अच्छा डाइट लेना चाहिए, बट फिर भी वी आर हॉगिंग ऑन टू पिज्जाज, बर्गर्स एवरी डे. आई एम नॉट अगेंस्ट pizzas and burgers. I am very glad that people should eat it, but there has to be a way of eating it. We never suggest rigid diets या diet chart या dieting. We are against all these things. या intermittent fasting, calorie deficit. मैं तो हमेशा आपके वर्कआउट प्लान्स के साथ डाइटिंग के प्लान्स भी होते हैं या नहीं? हमारे कोई प्लान्स नहीं होते. हम सिर्फ ये बोलते हैं कि अपनी बॉडी को समझो. मैं आपको कैसे बता सकती हूँ आपको कितनी भूख लगी है? एम आई द राइट जज? मैं कितनी भी बड़ी डाइटिशियन बन जाऊँ, मैं कैसे समझ सकती हूँ कि आपको आज ज्यादा भूख लगी है या आज आपको कम भूख लगी है? आज आप पूरे दिन बैठे रहे हो या आज आपने 1 घंटा एक्सरसाइज की है या आज आपने रनिंग की है? ये तो आप ही जज कर पाओगे ना. वो जजमेंट, मैं उस जजमेंट में आपकी हेल्प करूंगी. ओके. मैं आपको ये बता सकती हूँ आपकी बॉडी की तासीर के अकॉर्डिंग व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट. बट मैं ये नहीं बता सकती कि आप 10 ग्राम खाओ, 20 ग्राम खाओ या इतना. जो ये कर रहे हैं, अगेन शी मेंशन्ड, दैट इज नॉट सस्टेनेबल. आप वो 2 महीने मैक्सिमम 6 महीने करोगे, देन यू विल बी लाइक नहीं आज तो सारा खाना ले आओ. कितना मेजर करोगे कि एक कटोरी राइस, 1 कटोरी चावल है, वो कितने पता दिन लगा चला घर पे लोगे? बर्तन से ज्यादा तो फिर वन मंथ चला मेजरमेंट लोगे? के इक्विपमेंट्स रहेंगे फिर. नहीं, मोस्टली मैंने पीपल को देखा है कि लाइक वो करते हैं, 1 मंथ जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है, 1-2 किलो हो जाता है. उसके बाद कहते हैं 2 महीने बाद यार हमारा फिर से वेट बढ़ गया, क्योंकि वो सस्टेन ही नहीं कर पाए ना. अगर आपने अपनी बॉडी को समझ लिया
और समझ गए कि आपको जब भूख लग रही है तब आपको खाना है, या कितना अगर मैंने बाहर का खाया है आज या मेरे को शाम में बाहर का खाना है तो मैं दिन में लाइट खा लूं, तो वो आपको अपनी बॉडी को समझना होगा ना ओके कि अगर मेरे को बाहर खाना है तो चलो अभी मैं लाइट खा ली तो वो मेरी बॉडी के लिए मतलब सूटेबल है। जो हैवी खाना है, पिज्जा या बर्गर है, दैट इज बेसिकली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। हमें समझना है, अगर वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है तो मैं उसकी क्वांटिटी कम कर देती हूँ। जो हल्का खाना है वो मैं ज्यादा अफोर्ड कर सकती हूँ खाना, बट जो भारी खाना है, जो मेरी बॉडी को टाइम लगेगा, उसको मैं कम क्वांटिटी में खाऊंगी। और अगर मुझे पता है उससे पहले और उसके बाद में हल्का खाना खाऊंगी तो मेरी बॉडी उससे शॉक नहीं होगी, बट मैं Okay. सोच रही हूँ और कि आपको मैं टेस्ट भी मिल जाएगा और देन हाँ वो क्योंकि क्रेविंग तो होती है ना, नेमिंग अब होती इतने है तो सालों से देन खाते आपकी हैं, छोड़ देखो नहीं सकते। हाँ, तो बस छोड़ना नहीं चाहिए, पोर्शन ऑफ कंट्रोल रखना चाहिए। नहीं, आप सालों से नहीं खाते, सालों से तो हम अच्छा खाना ही खाते आए हैं। दाल रोटी सब्जी। दाल रोटी सब्जी। अगर आप देखो, ट्रू, आई मीन अगर हम नाउ रूट्स आई रियलाइज इट। अगर हम रूट्स पे जाएं तो हम, इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे सबसे फ्रेश, लोकल और सीजनल खाना मिलता था और हम खाते थे। बट अगर मैं अभी के जनरेशन के हिसाब से बात करूँ तो अब तो वो भी दिख रहा है ना कि बचपन से ही इंट्रोड्यूस हो गया फास्ट फूड। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स खा रहे हमने हैं। करा अब उन introduce। बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना जब तक वो बड़े होंगे, बाय द टाइम दे रियलाइज कि फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, their body has already consumed so much of junk food. तो मैं तो इसके लिए पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल कहती हूँ ना। पेरेंट्स समझेंगे तो ही तो किड्स विल नेवर फॉलो यू। अगर आप पिज्जा खा रहे हो और आप उसमें नहीं खिचड़ी खाओ, हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आपको अपने बच्चे को हेल्दी रखना है, हम पूरी लाइफ अपने आपका टारगेट तो फिर पेरेंट्स ही हो गए, बच्चे तो अभी है ही नहीं। नहीं नहीं, बच्चे भी हैं। मैं चाहती हूँ ये चीजें बच्चे स्कूल खुद ही में, सीख जाएंगे ना। हाँ, क्योंकि बच्चा तो हम पेरेंट्स से ही तो सारी चीजें सीख रहा है। जब मैं पेरेंट्स को ठीक कर दूंगी, हम कह रहे हैं बच्चा तो पढ़ना भी पेरेंट्स की वजह से ही सीखता है। कौन उसको स्कूल में डाल रहा है? उसको थोड़ी पता है मुझे स्कूल जाना है। पेरेंट्स ही तो सारी चीजें ड्राइव कर रहे हैं। अब पेरेंट्स सोचते हैं यार हम तो चुपके से पिज्जा खा लें, मैगी खा लें, और बच्चे को बोले नहीं नहीं ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो सबसे पहले हम एज अ पेरेंट सब बोलते हैं हम बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए ये घर बना के जा रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, उसमें भी हम बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है, बट कोई ये नहीं कहता नहीं यार हमें अपने आप को ठीक रखना है सो दैट हम अपने बच्चे की हेल्थ अच्छी कर सकें। तो कहते हैं ना, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स फॉर एवरी चाइल्ड। क्योंकि आप इतना कुछ बता चुके हो प्रोग्राम्स के बारे में, तो आई वाज गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि थ्रू आउट द डे वर्कआउट प्लान्स चलते हैं, अलग अलग बैचेस होंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हाउ डू यू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ? या आपका वर्कआउट उनके साथ ही हो रहा है? जनरली पीपल तो ये बोलते, जब मैं इस वाली इंडस्ट्री में आई तो सब लोग बोलते हैं यार तेरा बढ़िया है यार, तेरा तो साथ में ही वर्कआउट हो जाता है, तू तो बहुत बढ़िया है। और अभी भी मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ना, यार तू बिल्कुल सही आई है और तेरा तो बस साथ में ही रहता है, पर रियली ऐसा नहीं होता। अगेन नीना ने बोला कि हम बॉडी एंड माइंड को कनेक्ट करते हैं। जिस टाइम पे मैं मतलब एक्सरसाइज करा रही हूँ तो पहले मैं उनका बॉडी माइंड कनेक्ट कराऊंगी, अपना तो अपने लिए तो टाइम निकालना ही होता है। अपनी बॉडी को समझने के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। इस मीन्स ऐसा नहीं कि आप किसी को एक्सरसाइज करा रहे हो तो आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो। सो नॉर्मली आपका दिन शुरू कितने बजे होता है? 7:30 मतलब कई बार उठने जल्दी में भी भी होता है। लाइक या आई मीन दैट वुड इंक्लूड एनीथिंग। आप कब मेरा तो उठते जल्दी हो, उठता है। कब उठते हो और कब से आपका नहीं, वर्कआउट हमारा वगैरह वर्क टाइमिंग्स जनरली 7:30 स्टार्ट होते हैं, ओके, बट कुछ टाइमिंग्स हम एडजस्ट भी कर लेते जैसे हैं। मेरे यूएस क्लाइंट है तो आई स्टार्ट एट 6 AM। ओके, सो यू डू ऑन लाइक या ऑनलाइन आई आल्सो? डू ऑनलाइन आल्सो। So you have online and So we offline have both? online we and have offline, online, yes. बट हमारा ऑनलाइन पैटर्न ऐसा नहीं है कि हमने रिकॉर्डिंग लगा के दे दी और आप कर लो। वी डोंट डू रिकॉर्डेड सेशंस। Okay. वो हमारा लाइव सेशन होता है जिसमें हम आपको देख रहे हैं एंड आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। Okay. इट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन। जैसे अगर आप जो लोग यूट्यूब से करते हैं, हाँ वो तो फिर पॉज हो जाता है बीच में। पॉज हो जाता है और उन्होंने तो जितना बता दिया उतना हो गया। हाँ फिर आप आपने- पोस्चर्स कैसे देखोगे ना? आपने समझा क्या? आज स्कूल में है, स्कूल में हम पढ़ते हैं, अगर हमें अलाउड ही ना हो कि आप टीचर से पूछ सकते हो ये कैसे हुआ, आप इस थ्योरम में या इस आंसर पे कैसे पहुंचे, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू द बेस्ट? नो नेवर। तो सेम इज, बट हमारे प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा एक जो इशू व्हाट आई हैव, वी बोथ हैव फिगर्ड आउट, पीपल डोंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर हेल्थ। बड़ी गाड़ी ले लेंगे, घूमने चले जाएंगे, बड़ा घर बनाना है, बेस्ट जॉब लेनी है, बट अपने शरीर पे खर्चा नहीं करना है, जिसकी वजह से सब कुछ है। आप सोचो आप एक बड़े घर में रह रहे हो और पूरे दिन बॉडी दर्द करती है, विल यू बी एबल टू एंजॉय?
बेस्ट शादी करनी है, फंक्शंस करने हैं, कपड़े खरीदने हैं, बट अंदर पता लगा उसी शादी में डांस नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स वो 2 स्टेप की और थक गए। हाँ, तो उस आप बताओ उस चीज़ का क्या फ़ायदा। मतलब मैं ये समझती हूँ, और दे थिंक नहीं मैं तो वॉक कर रहे हैं, मतलब लाइक वी कम अक्रॉस दीज थिंग्स, हम तो वॉक करते हैं, अगर वॉक से सारे लोग ठीक हो जाते फिर तो इंडिया वुड हैव बीन द फिटेस्ट कंट्री, हमारे साथ इतने सारे हेल्थ इश्यूज ही ना होते। अगर मतलब मीन्स वॉक को ही एक्सरसाइज मानते हैं वो लोग। वॉक इज समथिंग, इट्स बेटर देन बीइंग अ काउच पोटैटो, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। ओके, आप वॉक करते हुए अपनी आर्म्स थोड़ी मूव कर रहे हो, और आजकल तो वॉक करते हुए भी पीपल वांट म्यूजिक एंड एवरीथिंग, तो वो माइंड कनेक्ट तो हो ही नहीं रहा फिर, दैट्स व्हाट। दे मोर कनेक्टेड टू दैट म्यूजिक रेदर देन। और आप सिर्फ लेग मूवमेंट करो, और वो भी सीधा, आपका लेटरल मूवमेंट्स, आपके हिप जॉइंट्स, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। और उसमें भी आपके पास लिबर्टी है, यार आज बारिश हो गई, आज तो वॉक की छुट्टी, अच्छा यार रात को लेट सोए थे, आज तो छुट्टी। एक डंडा होना जरूरी है सर पे। आपको डंडा लाएगा कौन? हम योर ट्रेनर, गो एंड एनरोल योरसेल्फ समवेयर। पहला डंडा प्रॉब्लम है ना, आप तो बाद में आओगे। बच्चा भी तो स्कूल जाता ही है, ऑफिस भी तो जाते ही हो, खाना भी खाते हैं, नहाते भी हैं, हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, बट एक अपनी इनर फिटनेस के लिए टाइम नहीं है। नहाना इज एक्सटर्नल क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी, जो हम डेली कर रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, दैट हैज बीन इम्बाइब्ड इन आवर कल्चर। डेली खाना खाना है, और वो भी 3 टाइम खाना है, और आज तो वो 5 से 6 टाइम हो गए क्योंकि इतना पर जो अंदर का खाना बॉडी को चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, लाइक एक्सरसाइज, मेंटल रिलैक्सेशन, दिमाग को भी तो रिलैक्सेशन चाहिए, शांति चाहिए, वो तो है ही नहीं, वो तो हर ओके, टाइम। सो रिलैक्स माइंड की बात हुई तो याद आया, योगा और मेडिटेशन सिमिलर है, डिफरेंट है, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हमारे लिए तो मेडिटेशन इज सेम, माइंड एंड मसल कोऑर्डिनेशन। अगर आपने दिमाग से अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो आपने मतलब इट्स लाइक यू हैव विन द वर्ल्ड। एंड आई गेस मेडिटेशन में भी आप यही करते हो, दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हो। दिस इज मेडिटेशन सिंपल वर्ड्स में, बट मेडिटेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिस। आज मैं आपको बोलूं चलो मैं आपको मेडिटेशन करवा रही हूँ, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू फोकस? नो, एक्चुअली आई हैव हर्ड पीपल जो कहते हैं कि लाइक मैंने आधे घंटे मेडिटेट किया लेकिन आई वाज स्टिल थिंकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स। तो हम उसको क्योर कर सकते हैं 3 months में, 100% गारंटेड। ओके, आई कैन मेक श्योर, इन फैक्ट देर आर केसेस जिसमें हम 2 classes में भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ सकते हैं, बिकॉज वी यूज दोज टेक्निक्स जिससे आपका फोकस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप भूल जाते हो फॉर द लाइक 10 minutes और 15 minutes के लिए, यू जस्ट फॉरगेट कि ऑफिस में क्या था, घर पे क्या था, स्कूल में क्या होना था, ऑफ वॉट एवर, यू आर जस्ट देयर। देन मतलब खुशबू नोज, लोग सो जाते हैं, हाँ they are completely relaxed, calm, so we have experienced those things, but yeah it takes time, क्योंकि इतना जब आपने इतने दिनों से वो चीज़ नहीं फॉलो की है तो उसको सेंट्रलाइज करने में, टू ब्रिंग दैट थिंग, हाँ इट टेक्स टाइम। अच्छा, नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस इनसाइड दिस फील्ड, अगर कोई इसमें शुरू करना चाह रहा है, वंस दे एंटर इनटू द फिटनेस प्रोग्राम्स, तो अलग अलग प्रोफेशंस भी होंगे, और इज इट लाइक जस्ट बीइंग अ ट्रेनर? नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप जैसे आपने बोला कि पीपल आर ईगर टू लर्न द कोर्सेज, तो आप एक अकेडमी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, and then of course you can cure people, you can treat people, that is as I a think you mentioned like your mother was into some profession. that she was running a yoga and naturopathy center, Okay, so it was a proper center जहाँ पे naturopathy treatment होता है, okay, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। so naturopathy is again a vast area. Then there are so many things, holistic healing is one thing, then there are things like sound healing, बहुत सारी चीज़ें, डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कोर यू नो व्हाट इज समथिंग विच कनेक्ट्स, मतलब आपका पैशन क्या है। and there's something called as rehab also. So What exactly is that? हमने बेसिकली अपनी एक्सरसाइजेस को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ग्रुप ट्रेनिंग्स एंड पर्सनल ट्रेनिंग्स। Okay, ग्रुप ट्रेनिंग्स हम बेसिकली टारगेट करते हैं विच इज़ अ जेनेरिक क्राउड, जिनको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज या मेडिकल कंडीशंस नहीं है, जिसमें हम उनको कार्डियो, योगा,
stretching, strengthening, everything we target. Okay. Then there are personal sessions जिसमें हम medical conditions treat कर रहे हैं. There basically rehabilitation exercises and mobility exercises and joint health. इन Okay. चीज़ों पे हम deeply focus करते हैं. लाइक जो पर्सन सफर कर रहा है फ्रोजन शोल्डर, नी पेन, साइटिका, Cervical common as well. सर्वाइकल, तो Back इस pain, टाइप knee के pain. हाँ So it would be more like Slip a disc. specific program designed for हाँ. the particular issues. हाँ. So अभी जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, एंकल फ्रैक्चर हुआ, रिस्ट फ्रैक्चर हुआ, Okay. उसके बाद आपने कास्ट लगा 1 मंथ के लिए, देन फिजियोथेरेपी करवाई, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद छोड़ दिया, फिर वो दर्द करता रहता है. Correct. तो वी आर दैट ऑप्शन जहाँ पे हम पोस्ट फिजियोथेरेपी वी विल बी गाइडिंग यू फॉर दोज रिहैबिलिटेशन मूवमेंट्स वेयर इन योर जॉइंट विल कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट. फिर हम इनफैक्ट जो लोग हमारे साथ पर्सनल सेशंस में हैं उनको हम ग्रेजुअली ग्रुप सेशंस में मूव कर देते हैं कि नाउ यू कैन गो अहेड विद. हाँ, but better हो गया condition तो. हाँ. That brings me to one more question. Like, what is the ideal age to start? I mean, is it late if someone has already crossed like 50? क्या वो start नहीं कर सकता? आप बताओ कि कैसे कैसे लोग आते हैं हमारे पास. एज अ करियर मतलब स्टार्ट करने नहीं, के नहीं. लिए. अभी तो नहीं, फिटनेस प्रोग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूँ. वी हैव पीपल 70 प्लस ऑल्सो ओके, Okay. who are passionate about their health. आई थिंक वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, वो बहुत ज्यादा पैशनेट है. So, जो Then 70 somehow they are free from that. No. नहीं 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 Corporate. नहीं, ये किसने बोला? फ्री Free आप तो पूरी आजकल लाइफ कोई ही भी नहीं नहीं होते. है. एक 6 साल का बच्चा फ्री नहीं, आपको लगता है आपकी डॉटर फ्री वो है? तो फ्री बिल्कुल. बच्चे तो नहीं. सबसे ज्यादा बिजी है आज की डेट में. We have enrolled them into so many एक्चुअली मुझे programs. लगता है कि हमें थोड़ा मतलब काफी टाइम हो जाता है अपनी बॉडी को समझते जब एंड टाइम में लाइक 50 में आते हैं ना, तब पता चलता है कि मेरे को यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, नाउ अब मुझे कहीं जाना चाहिए. देन कई लोग तो पीपल ऐसे हैं कि वो अब रियलाइज करते हैं कि यार खुशबू हमने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, मतलब हमें इसका कुछ बारे में पता ही नहीं था, या लोग ऐसे स्लाउच करके ऐसे बैठते हैं, यार मैं तो 30 साल से ऐसे ही काम करती रही, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ऐसे रहना है, या मेरी बॉडी का पोस्चर ही ऐसा हो गया. तो उनका रियलाइजेशन ही इतना लेट हो जाता है कि फिर वो. और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एज यू मेंशन कि 50 के बाद स्टार्ट करना लेट है या 70 के बाद लोग क्यों आ रहे हैं, रीजन बीइंग जैसे आई टोल्ड यू 20-25 ईयर्स तक ना आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ना हमारे पास कोई स्ट्रेस होता है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ देखना नहीं. इंडियन कल्चर में 25 साल तक पेरेंट्स टेक केयर करते हैं, तब तक हम एकदम फ्री बर्ड हैं. Free bird है. और इतना कूदते हैं, चलते हैं, भागते हैं अननोइंगली. अगर आप यू हैव अ डॉटर, आपने देखा होगा वो कहीं भी रोल कर जाएगी, Correct. राइट? आप रोल कर सकते हो कहीं भी, बिकॉज 25 के बाद व्हेन वी एंटर द कॉर्पोरेट्स और वी एंटर यू नो वी स्टार्ट बिकमिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड. ऐसे ही बैठना है, नीचे नहीं बैठना, अरे नीचे बैठेंगे तो कोई क्या कहेगा. कहेगा. तो वी हैव फॉरगॉटन दैट, हमारी बॉडी को आदत ही नहीं है नीचे क्रॉस लेग करके कैसे बैठना है. I have forgotten that. I used to do that earlier, but now it's become a little difficult for me. तो अब क्या होगा, 30s में जाके ये हिट करता है. Okay. 35 में जाके लगता है अरे यार कुछ तो हो रहा है. नहीं नहीं यार, अभी तो बहुत काम है, अभी कोई टाइम नहीं है बॉडी के लिए, अभी तो जॉब है, बस कमाना है, बच्चों के लिए ये करना है, घर के लिए ये करना है. वो करते करते 45-50 आप पहुंच जाते हो. जब बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, 50 के हो गए, बच्चे कॉलेज चले गए, यार इतनी दर्द होने लग गई है, अब कौन देखेगा हमें, हु विल टेक केयर ऑफ अस. देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग, और 40 साल तक 50 साल तक मेडिसिन, मे बी मालिश, थेरेपीज, इन सारी चीज़ों से आप अपना गुजारा करते रहते हो. Correct. फिर उसके बाद जब 50 के बाद तो इट्स लाइक एवरीथिंग स्टार्ट्स रिवर्सिंग. तब आपको लगता है यार अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया पेन किलर ही नहीं असर कर रही है. अब तो हमारे पास मेजरली केसेस, बॉडी अडेप्ट हो चुकी है ना उसके साथ. अब डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन. अब क्या करें, डॉक्टर कहता है सर्जरी करवा के भी यही करना है, आप सर्जरी से पहले ट्राई कर लो. दैट इज हाउ. तो लेट तो कुछ भी नहीं है, ना लेट की कोई डेफिनेशन है, ना जल्दी की कोई डेफिनेशन है. जब समझ में जब आए. जागो तभी सवेरा. करेक्ट. सो इफ यू लुक बैक इनटू योर जर्नी, सेम फॉर यू आल्सो खुशबू, बिकॉज आपने बहुत सारे लोगों से सेशंस किए हैं, अलग अलग डोमेन से होंगे, अलग इंडस्ट्री से होंगे, सबका अलग बैकग्राउंड होगा. तो एनी एक्सपीरियंस, एनी थिंग विच यू लाइक टू कॉल आउट एज एन अचीवमेंट, कोई ऐसा केस
which has been a very big achievement. बताओ आपके पास हाँ हाँ है तो बहुत सारे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक अप. So there was a girl. She was just 24. Okay. She joined me by the reference of her some roommates or something. She was trying for army and navy. Okay. But because of the physique and because of the long sitting and junk food and everything, staying in a hostel, so nothing was working out. Somehow she joined me, and it took me 1 year. She reduced to half Okay. with no major restrictions on diet. I just told her कि आपको कैसे tweak करना है. खाना सब कुछ है, but tweak कैसे करना है. And then of course her consistency, वही हमारा 3 days का ही format है और 2 days का format है. Okay. The people who want to do it little more, तो we do it for 5 days also. वो आपकी choice है. हाँ. But we always say पहले इसको अपने routine में incorporate करो, फिर अगर आपको लगे doable है, then go ahead. Okay. Then she was very consistent. धीरे धीरे start किया, body pains भी हुए, but never give up वाला state था. हाँ, वो जरूरी She है. said something hard hit her कि मुझे ये interview clear करना ही है. Okay. And then after a year there was a lot of improvement, and thankfully she get through the interview. But post that there was some medical condition related to hyperextension of the knees. Okay. So that was highlighted during her medical tests. हाँ वो. जब हमें she talked to me कि हम ऑर्थो से कंसल्ट करें या क्या करें. So I just told her कि यार let me give it a shot. I don't know whether I'll be able to do it or not, but एक ट्राई करके देखते हैं. And हमारे पास 40 days का स्पैन था. Okay. So she was so hard working. मतलब because ये काम ऐसा है मैं अकेले नहीं कर सकती. हाँ, unless I they need- have the dedication. दोनों तरफ से एफर्ट्स चाहिए. Correct. डायरेक्शन एंड देन एप्लीकेशन. राइट, जैसे एक कोच का काम होता है. एक कोच आपको गाइड कर सकता है, बट करना आपको ही है. Correct. एंड शी गॉट थ्रू. Okay. Like we were able to cure that. Her medicals were clear and she was there. That's good. So I was like, I still admire myself and her trust on me that yes, we did it together. We have so many cases बहुत for सारे that. हैं. So many, like हाँ, हमारी हैप्पीनेस ही ये है कि जब बंदा क्योर होता है या ठीक होता है उससे हमारा लाइक ड्राइव होता है कि हाँ चलो अब हमने कुछ अचीव किया है. तो मेरी फ्रेंड है तो उनका लाइक हाथ पूरा लाइक ये उठ नहीं पाता था. Okay. तो नाउ अभी भी मतलब स्टिल जर्नी इज गोइंग ऑन, लेकिन अब नाउ शी इज एबल टू मतलब लिफ्ट. तो was it like कोई मेडिकल इश्यूज था पहले का, कुछ वो इंजरी? उसका बाय बर्थ बोन में ही था. Okay, So, by birth like, केस था. when she joined, खुशबू ने बस उसको गाइड किया था कि आप एक बार ट्राई करके देखो. एंड when she came, her arm was at this level because what I noticed is कि यहाँ की सारी muscles tight हैं. And she said कि ये सारा मेरा by birth है. She admitted this thing कि यार ये ठीक हो ही नहीं सकता. मैं उनको बोलती थी I can try. She said ईना ये हो ही नहीं सकता because एक वो मेंटल since- ब्लॉक बन गया ना. वो by क्योंकि birth बचपन ही से है उसने यही सुना, उसने हाँ. देखा है कि मैं बचपन से ऐसी ही थी. तो इट वाज लाइक कि ये तो हो ही नहीं सकता. मैंने पूरी अपनी कॉलेज लाइफ, नाउ शी इज अ मदर, इतने 30 साल निकाल दिए ऐसे, तो अब कौन सा ऐसा मैजिक हो जाएगा. करेक्ट. बट आई सेड मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ, बट ये टाइम लगेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा. एंड आई डोंट नो, इट्स बीन 1.5 year नाउ. फ्रॉम हियर वी हैव रीच्ड हियर. Yeah, हाँ. And her digestion is better. Her body has toned like anything. उनके जो lower back pain था वो चला गया है. ओके. And so many, मतलब we have her testimonial also, but we have like very good stories. This is really inspiring. I mean, Yeah. both the stories are inspiring actually. I mean, In I think many people will relate to it क्योंकि सबकी अपनी एक जर्नी है, सबके अपने प्रॉब्लम्स है, तो मे बी दे रिलेटेड इन सम वे और द अदर. In fact, she says कि मेरी mother was amazed कि जो मुझे कभी पता नहीं चला, and now ये कैसे हो गया. ओके, लॉट्स ऑफ सीरियस टॉक्स. थोड़ा सा क्विक फायर करते हैं. ओके, फिर कीप इट शॉर्ट, लाइक 1 या 2 लाइन में आंसर्स करेंगे. आई मीन व्हाट वुड यू रिकमेंड, लाइक मॉर्निंग प्रैक्टिसेस या इवनिंग, व्हिच इज बेटर? Anything where you get time for yourself and be consistent with it. That was diplomatic. If you have to choose one yoga pose for the entire life, कि एक ऐसा योगा पोज जो मैं हमेशा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, which one would be?
आई गेस कोबरा पोज, हाँ मैंने भुजंग क्योंकि स्पाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. देयर इज अ सेइंग कि अगर आपकी स्पाइन ठीक है ना 60 years में भी, दैट इज यू आर द यंगेस्ट पर्सन. Cobra pose. Right? भुजंग आसन So all the people having spine issues should try this Cobra pose. स्पाइन इशू है या नहीं है आपकी, मतलब करते रहो ये तो स्पाइन की इशू आएंगी नहीं शायद. बट लेकिन 99.9% पीपल डू इट रॉन्ग. Okay, then they can reach out to you for the correct guidance. We have that USP of posture correction Okay. and body बॉडी alignment. अलाइनमेंट. ये हमारा uniqueness है which I think is little less available. Okay, this one is about intermittent fasting. ठीक है, इस पे हम बात कर रहे थे. तो how to do it properly? See, intermittent fasting अगर हम देखें, हम again हमारे ancestors से ही वो चीज़, वो practice हम follow कर रहे हैं. But it is just that अब उसको एक fancy name दे दिया बेचने के लिए, intermittent fasting. Okay. But if we talk about our older generations, they always say कि सुबह सूर्य उदय के बाद खाना है और सनसेट से पहले खाना खाना है. तो वो अपने आप ही इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी बाय डिफॉल्ट. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए बिकॉज बॉडी को टाइम मिलता है रिलैक्स करने का. बट ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे इतना ज़्यादा खा लो या कुछ भी जंक खा लो एंड देन यू आर लाइक मैं 18 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ. आप जो खा रहे हो वो आपको एनर्जी दे रहा है. आप वो एनर्जी यूज़ कहाँ कर रहे हो? आप तो पूरे दिन बैठे ही हो, तो फिर वो एनर्जी यूज़ कहाँ हो रही है? वो तो डिपॉजिट ही हो रही है. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग खाना इतना एम्पल आ चुका है हमारे पास. एंड मुझे लगता है अगर आप सुबह खा रहे हो और शाम को खा रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं, और उसमें भी लाइटर मील्स. मुझे बहुत क्रेविंग होती है. क्रेविंग I'll होती have है, to work on that. क्रेविंग होती है. दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. वो कनेक्शन, आपकी जो हंगर हार्मोन्स है ना वो मे बी जैसे इम्बैलेंस बैलेंस आपने सुना होगा, हंगर हार्मोन्स होते हैं हमारे. तो अगेन वो एक्सरसाइज वगैरह आप करोगे देन हाँ, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेस था ना, तो या इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा से भी होता है. हंगर हार्मोन्स वो डिस्टर्बेंस होते Okay. हैं. देखो ऐसा नहीं होता. स्ट्रेस तो हर किसी के साथ है. आज आप कॉर्पोरेट स्ट्रेस कह रहे हो, कल आप बिजनेस करोगे, बिजनेस स्ट्रेस आ जाएगा. फिर मे बी कोई फैमिली स्ट्रेस आ जाएगा, फिर कोई बच्चे का स्ट्रेस आ जाएगा. स्ट्रेस तो रहेगा ही. वी कांट से वो सबके साथ है और वो चला आ रहा है. बट उस स्ट्रेस को ओवरबर्डन करके छोड़ देना. आपको स्ट्रेस है, आपने नहाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया. ये तो ना वो वाला साहब हो गया, स्कूल की में नहीं होता है, होमवर्क करके नहीं आया. मैम मैं भूल गया. क्यों? कल खाना नहीं खाया था, भूल गया. दिस इज टीचर स्पीकिंग ना. ओके, अगर कोई कहता है कि मैं रोज जिम जाता हूँ, तो डज इट मीन दैट दे आर एक्चुअली हेल्दी? सी, मेरा एक ओपिनियन है कि बॉडी फिटनेस के लिए आपको हर चीज चाहिए. सो आई एम नॉट अगेंस्ट जिम. जिम इज अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी. बट व्हाट आई फील इज जिम में आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. वहां पे फोकस नहीं होता. जिम में आपका फोकस रहता है वेट लॉस एंड वेट लिफ्टिंग. या मसल्स बनाना. Muscles बनाना. अगेन मसल इज इम्पोर्टेंट, बट अगर आप जिम वाले पर्सन को बोलो कि जरा फॉरवर्ड बेंड करना, तो इट्स लाइक मतलब कर ही नहीं पाते. हाँ. तो उसमें क्या होता है, That I've मसल्स seen तो like बन many जाता people है लेकिन have that posture, पूरे एक ही पोस्ट में चलते रहते मसल्स तो हैं. बन जाता है लेकिन ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कम तो होती है. वो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और स्पेशली आई हैव सीन post 40 males are pushing themselves towards yoga and these mobility exercises. They are like हमें zumba करना है, हमें cardio करना है. और to be honest, gym is little boring also. एक टाइम के बाद आप कितने टाइम तक सेम वेट उठाते रहोगे? तो उसका मोटिवेशन आना इज वेरी डिफिकल्ट. Correct. हमारी क्लासेस में एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है, आपको नहीं पता कल मैं क्या करवाने वाली हूँ. द वे आई चैलेंज योर बॉडी विल बी डिफरेंट ईच डे एवरी डे. चाहे आप मेरे साथ 5 साल तक साथ रह लेना, तब भी आपको हर दिन एक नया तरीका मिलेगा बॉडी को मूव करने का. Okay. दैट्स आवर स्पेशलाइजेशन. Okay. तब भी आपको एक एक्साइटमेंट रहेगी आज ये क्या करवाने वाली है. इनफैक्ट पीपल स्टार्ट हैविंग दैट फोमो कि यार इना आज ये क्लास मिस हो गई, प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग दे दो. Okay. Okay, so how do you compare online versus the in-person programs? Like what are the differences and all? हमारे कंपैरिजन में तो कोई डिफरेंस नहीं है.
बट कुछ challenges या कुछ भी 100 to ऐसा 80 का बस वो हम सिर्फ क्या करते हैं एंगल चेंज करा लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम 360 डिग्री पर देख सकते हैं, बस उस टाइम पे ये लगते मतलब उस टाइम पे हम बस डायरेक्शन चेंज करा लेते हैं, अदरवाइज तो हम लोग तो सेम ही डिलीवर करते हैं। और हमारी Okay. स्पेशलाइजेशन है पोस्चर करेक्शन। पोस्चर मैं आपको एक छोटी सी स्क्रीन में भी देख के बता सकती हूँ आपने क्या सही गलती कर की रहे है। हो। Okay. सो हमारे लिए आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन Offline, करो, डजेंट मैटर, same. बस करो। Okay. यू हैव टू बी देयर। So before COVID it was more of the in-person programs only. तो COVID के बाद आपके लिए क्या बेटर रहा या how did it change for you? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। देयर आर मेनी पीपल हु वर डूइंग ऑफलाइन सेशंस विद मी बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड कुछ लोग शिफ्ट हो गए, कुछ लोग अपने होम टाउन्स चले गए, हाँ. किसी की जॉब शिफ्ट हो गई। दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद अस ऑनलाइन। सो आई नो एटलीस्ट आई am still in connect with them, they trust me and we have a mode जहाँ से हम एक दूसरे के साथ connect कर सकते हैं and still have the same results. तो were you offering this online programs earlier also या एक post COVID के बाद ही आया? Post COVID that was an enlightenment कि अच्छा ये भी मॉडल क्रिएट हो सकता I है। mean this has become a new model for everyone. एक और stereotypes है actually, ठीक है? Generally people say that like workout is for people who are overweight and not for someone who is lean. मतलब बोलते तो यही है कि हाँ लीन है, अरे तू पतला है तू क्या करेगा, या वो तो सिंपल हम तो लोग ऑलरेडी फिट है। तो ऑलरेडी फिट है। तो बेसिकली वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि मोटा पतला, जो इन्होंने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा फोकस है ही नहीं कि तू पतला हो जाए वेट कम हो जाए। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है। अगर आप स्टेयर पे चल रहे हो तो आप कितनी एक्टिवली चल पा रहे हो, आपकी बोन्स कितनी हेल्दी हैं, है ना, आपकी बॉडी में कहीं पेन तो नहीं। इट्स ऑल अबाउट द बॉडी आपकी कितनी स्ट्रांग है एंड एक्टिव है। अगर आप पतले हो और आप 10 सीढ़ियां चढ़ के यू आर थकने बिकमिंग ब्रेथलेस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग 50? इट्स बेटर टू बी 60। 60 के होके आप भाग भाग के सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आप नीचे बैठ के बच्चों के साथ खेल सकते हो, स्क्वाट कर सकते हो, अपने लाइक यू नो मे बी एल्डरली पीपल उनको होल्ड कर सकते हो। दोज आर द अपना सामान निकालना है, अरे यार निकाल दो यार, ये उतार दो, मेरा तो हाथ ही नहीं ऊपर जा रहा। what about I don't call it a fitness। आप कितने भी पतले हो, देखने में आप लग रहे हो हाँ बहुत पतले हो, बट अंदर क्या है? दैट इज व्हाई वी से ER लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट होलिस्टिक हीलिंग एंड Okay. इंटरनल फिटनेस। हम आपको अंदर से क्योर करते हैं, जो कि अगर आप देखोगे मेंटल हेल्थ आज भी इतना एक्सेप्टेड टर्म नहीं है। नहीं। आज भी इफ यू से दैट यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज तो वो अच्छा ये पागल है। जनरल तो एक्सेप्टेंस आ गई है काफी ज्यादा। बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। अभी भी ये बोलना ही मतलब सामने वाला का परसेप्शन अजीब सा होगा। बट अब वही है कि बट दिस हैज बीन imbibed in our generations since very long। आपको लगता है जो इतना क्राइम रेट है ये क्यों है? बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। कहीं ना कहीं जो अनहील्ड ट्रॉमाज हैं हमारे चाइल्डहुड के, हमारे एडल्टहुड के, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें उस टाइम पे समझ नहीं आई, मे बी हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड भी, वो चीज़ें जो आज क्राइम बन रही हैं वो कोई ट्रॉमाज ही तो है जिसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बॉर्न क्रिमिनल तो नहीं होता है, कोई चोरी अपने मन से तो नहीं करता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो उसको ट्रिगर करा जिसने उसको चोरी करने के लिए मजबूर किया। Then that gradually becomes a practice. मेंटल हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें अपनी सोसाइटी में, इंडिया में क्राइम रेट भी कम करना है तो दैट विल कम बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हीलिंग। ये भी एक बहुत बड़ा एड ऑन फैक्टर है कि जो अभी तक हम फोकस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल फिटनेस, पतला मोटा दिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके रैपिड फायर को हमने एक्सटेंडेड फायर बना दिया। Before we wrap up, okay, for today's session, what would be your message to the working professionals who are listening to us? प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो, कैसे भी करके मिनिमम 2 hours in a week और 3 hours in a week, and especially my address is for the women। Okay. कि हमेशा घर के कामों में, बच्चों के साथ और सोशल ऑब्लिगेशंस के साथ अपने आप को इतना
स्पेस आउट मत कर दो कि आप अपने अपने बारे में ही नहीं सोच पाओ. एंड आई कैन गारंटी, अगर आपने ये 2 घंटे या 3 घंटे एक वीक के अपने लिए निकाल लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ टाइम में इतना मेजर डिफरेंस आएगा. आप कहोगे नहीं यार, ये 1 घंटे से मुझे मेरे 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए. Cool. And if people want to reach out to you for the further details, so where exactly they can reach out? So the contact number is 9810370905. I am available there. You can DM us, and we are there on Instagram. We are there on YouTube by ER Lifestyle India. You can reach out. You can DM I'll us. put the links in the description also. That will be really helpful. Sure. That brings us to the end of today's episode. Thank you, Inaji. Thank you, Thank you Shruti, so much. Thank for you so much. giving your expertise and sharing your experience with us. I'm sure many people would have learned a lot of things from today's session, and hopefully people will be inspired to move toward a healthy lifestyle. And if they have any queries, obviously they can reach out to you. Thank you so much Thank for having us here, Yeah. and let us share the experiences and how we feel being on this side. And I would also want to ask people that please start investing in your body. It is the most important asset which will stay with you forever, and start building it as soon as possible. This is the biggest investment. So I hope like today's episode has inspired people to take a pause and reflect on themselves and maybe roll out that yoga mat. If you want to like explore the other career options, then please remember to subscribe to the channel, because in the next episode we'll be bringing in another expert from another field to share their experiences and their expertise. Thank you. Have a great day.